وہ لوگ جو اپنے لیے خود مشکلات بناتے ہیں اپنی زندگی میں، اور اس پہ باقاعدہ جو ہے بکس لکھی جاتی ہیں، ایون اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں اس کو ایک پرائیورٹی کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور پرائیورٹی دی جاتی ہے اس چیز کو، سیلف ہرڈلز کو۔ ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر آپ دیکھیں تو وہ خود بخود اپنے لیے مسائل بنا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو خود ہی مشکل بنا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کا، موبائل فونز کا، ڈیوائسز کا مس یوز کر کے اپنے لیے جو ہرڈلز بناتے ہیں۔ دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ ٹو ڈیل وتھ ناؤ اڈیز، اینڈ ڈیفینیٹلی اٹ از اے کامن تھنگ جو سب کو پتا بھی ہے، سب انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں، اس چیز کو ریئلائز بھی کرتے ہیں، بٹ اس چیز کو فالو کوئی نہیں کرتا، وچ از اے ویری ہیوج پرابلم، جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے سمپلی طریقے ہیں، دیٹ از فرسٹ آف آل ٹو ریئلائز یور مسٹیکس۔ جو سیکنڈ چیز ہے ریئلائز کرنے کے بعد، دیٹ از ٹو ورک آن اٹ۔ دس از ویری سمپل، یہ بہت ہی سمپل تھیری ہے، بہت ہی سمپل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دس از می حماد صافی۔ آج کے جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اس لحاظ سے ہے کہ جس ٹاپک پہ آج ہم ڈسکشن کریں گے، دیٹ از اباؤٹ وہ لوگ جو اپنے لیے خود مشکلات بناتے ہیں اپنی زندگی میں، خود ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں، یا جس کو سیلف ہرڈلز بھی انگلش میں کہا جاتا ہے۔ دس از اے ویری بگ تھنگ ٹو ڈیل ود، اور اس پہ باقاعدہ جو ہے بکس لکھی جاتی ہیں، باقاعدہ اس پہ سیشنز دیے جاتے ہیں، اویئرنیس سیشنز باہر ممالک میں دیے جاتے ہیں، ایون اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں اس کو ایک پرائیورٹی کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور پرائیورٹی دی جاتی ہے اس چیز کو، سیلف ہرڈلز کو۔ سیلف ہرڈلز کیا ہیں؟ انسان کیسے اپنے لیے مشکلات بناتا ہے، ہم کون کون سی مشکلات اپنے لیے اپنی زندگی میں بناتے ہیں، اور ان مشکلات کا سامنا کیسے کریں، ان ہرڈلز کا سامنا کیسے کریں، اور ان چیزوں کو ہم ٹیکل کیسے کریں، اس چیز پر آج ہم بات کریں گے۔ دیکھیے، سیلف ہرڈلز جو ہے یہ اپنی زندگی کو خود مشکل بنانا، دس از سم تھنگ ویری کامن ان آور سوسائٹی۔ ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر آپ دیکھیں تو وہ خود بخود اپنے لیے مسائل بنا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو خود ہی مشکل بنا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کا، موبائل فونز کا، انٹرنیٹ کا، لیپ ٹاپ کا، ٹیبلٹس کا اور گیجٹس کا، ان ڈیوائسز کا مس یوز کر کے، یا چاہے جتنے بھی ڈفرینٹ اپلیکیشنز ہیں، سوشل میڈیا پلیٹفارمز ہیں، ان کا مس یوز کر کے، ویڈیو انجنز ہیں اور سرچ انجنز ہیں، آنسر انجنز ہیں، ان کا مس یوز کر کے، یا اپنے جو ٹائم ہے ان کے پاس، یا جو اسٹڈیز کا ٹائم ٹیبل ہے ان کے پاس، ان چیزوں کا مس یوز کر کے، یا ایون اپنی جو ڈیلی روٹین ہے اس کا مس یوز کر کے اپنے لیے جو ہرڈلز بناتے ہیں۔ دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ ٹو ڈیل وتھ ناؤ اڈیز۔ ہمارے نوجوانوں کو آپ دیکھیں، جس طرح میں نے ابھی بات کی، چیزوں کا مس یوز کر کے، لمٹ سے زیادہ کسی چیز کا استعمال کر کے، وہ اپنے لیے خود ہرڈلز بنا رہے ہوتے ہیں، اپنی لائف کو خود ڈیفیکلٹ بنا رہے ہوتے ہیں، خود مشکل بنا رہے ہوتے ہیں، اینڈ ڈیفینیٹلی اٹ از اے کامن تھنگ جو سب کو پتہ بھی ہے، سب انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں، اس چیز کو ریئلائز بھی کرتے ہیں، بٹ اس چیز کو فالو کوئی نہیں کرتا، کوئی اس چیز کو فیس نہیں کرتا، کوئی اس چیز کا سولیوشن کریٹ نہیں کرتا، وچ از اے ویری ہیوج پرابلم، جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو آپ دیکھیں، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو خود وہ اپنے لیے کریٹ کرتے ہیں، جسے سیلف ہرڈل کہا جاتا ہے، وہ ہے اپنا ٹائم کو ضائع کرنا، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ریئلائز نہیں کرتے ہاؤ امپورٹنٹ دیئر ٹائم از، ہاؤ امپورٹنٹ دیئر لائف از، اور خاص کر یوتھ کا یہ جو ٹائم ہے، یہ جو ایج ہے بٹوین 15 سے لے کر 30 تک یا 35 تک کی جو ایج ٹائمنگ ہے، یہ بہت ہی سیریس ٹائمنگ ہے، اور یہ جو یوتھ کا یہ جو ٹائم ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، بیکاز اس میں انسان اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھتا ہے، اس میں انسان جو ہے ایک ڈائریکشن کو سلیکٹ کرتا ہے اور اپنے اس ڈائریکشن کی طرف بڑھتا ہے، اور یہی ایج ہوتی ہے ایک ڈائریکشن پکڑ کر اس کی طرف جانے جس کے لیے جایا جاتا ہے۔ بٹ ہمارے نوجوانوں کو آپ دیکھیں تو وہ اس ایج کو ضائع کر دیتے ہیں مختلف چیزوں میں، اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے آر ناٹ سیٹسفائڈ ود دیئر لائف، اور ان کے پیرنٹس ان سے سیٹسفائڈ نہیں ہوتے ہیں، ان کے فیملی ممبرز ان سے سیٹسفائڈ نہیں ہوتے، نو ون از سیٹسفائڈ فرام دیم۔ یہ ہوتی ہے سیلف ہرڈلز، کہ انسان اپنی زندگی کو خود ہی مشکل بناتا ہے۔ اب موسٹ کامن سیلف ہرڈلز کیا ہیں ہماری سوسائٹی میں؟ جس طرح میں نے پہلے کہا، مس یوز کرنا چیزوں کا، یہ ایک بہت بڑا سیلف ہرڈل ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہم خود کریٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ رات کو دیر تک جاگنا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، بیکاز یہ ہماری فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے، اور مینٹل ہیلتھ کی تو تباہی ہے رات کو دیر تک جاگنا، اور دیر تک جاگ کے جو ہے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا، گیمز وغیرہ کھیلنا، گیجٹس کا استعمال کرنا رات کو دیر تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک، پھر اس کے بعد سونا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ہمارے مینٹل ہیلتھ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا سیلف ہرڈل ہے جو ہم خود کریٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹائم کو ضائع کرنا بہت بڑا سیلف ہرڈل ہے جو ہم خود کریٹ کرتے ہیں۔ اپنی
स्टडीज़ को, अपनी ग्रोथ को, अपनी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट को, अपने कैरेक्टर की डेवलपमेंट को, अपनी मेंटल और फिजिकल स्टेट बनाने को हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं। एक बहुत बड़ा सेल्फ हर्डल है जो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, ख़ास तौर पर हमारे नौजवान अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपनी डायरेक्शन की तरफ बढ़ने का जो रास्ता है या उसकी तरफ जो जाया जाता है, वो हम उसकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, वो ग्रोथ हम नहीं कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट हम नहीं कर रहे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट हमारी नहीं है, ना ही हम अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सेल्फ हर्डल है जो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। और यकीनन जितने लोग आप इस वक्त देख रहे हैं, आप खुद अंडरस्टैंड करते होंगे कि ये एक प्रॉब्लम है और ये ढेर सारे ऐसे मसाइल हैं जो हमारी लाइफ में मौजूद है, जो इंसान खुद बनाता है अपनी ज़िंदगी में। तो इन मसाइल को हल कैसे करें? इन मसाइल को हल करने के सिंपली तरीके हैं। दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल टू रियलाइज योर मिस्टेक्स, टू रियलाइज योर प्रॉब्लम्स एंड टू रियलाइज दोज सेल्फ हर्डल्स दैट यू आर क्रिएटिंग फॉर योर सेल्फ। उन चीज़ों को रियलाइज़ करना, ये सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहली टिप है अगर आप इसको बेटर बनाना चाहते हो, अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रियलाइज। रियलाइज़ कैसे किया जाता है? रियलाइज इज़ वेरी ईजी। यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या गलत कर रहे हो आप। वो इस तरीके से होता है कि आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं, आप अपना एक रूटीन बनाते हैं और आप देखते हैं कि आपके जो टाइम टेबल है, आपका ये रूटीन जो है, ये आपका जो टाइम है, जो डेली बेसिस की आपकी लाइफ है, वो किन चीज़ों में डिवाइडेड है। आया वो ऐसी चीज़ों में डिवाइडेड है जो आपको आगे की तरफ ले जा रही है, आगे बढ़ा रही है, आपको डेवलपमेंट की तरफ ले जा रही है, क्रिएशन की तरफ, इनोवेशन की तरफ आपको ले जा रही है, या वो इन चीज़ों में डिवाइडेड है कि वो आपको नुकसान दे रही है, वो आपको रोक रही है अपने मकसद तक पहुंचने से। आपको ये चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाएंगी जब आप अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाएंगे और आप देखेंगे कि आपने अपना टाइम किन चीज़ों में डिवाइड किया है। ये वो वक्त है जो इंसान जहाँ पर रियलाइज़ करता है कि उसकी मिस्टेक्स क्या हैं, वो किस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, किस चीज़ को मिस यूज़ कर रहा है, किस चीज़ को ओवर यूज़ कर रहा है, किस चीज़ को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहा जिसको देनी चाहिए। वो ये चीज़ें रियलाइज़ कर सकता है इंसान अगर वो अपने इस तरीके से प्रॉपर टाइम टेबल बनाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग इज़ टू रियलाइज़ करने के लिए मैंने आपको बता दिया दैट यू हैव टू गो एंड क्रिएट अ टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ। टाइम टेबल बनाने से मेरा मुराद ये है कि आप अपने टाइम को डिवाइड करो इनटू द एक्टिविटीज़ दैट यू डू ऑन योर डेली बेसिस, जो आपका ज़्यादातर टाइम खींचती है, आपका ज़्यादातर टाइम लेती है आपका। जो सेकंड चीज़ है रियलाइज़ करने के बाद, दैट इज़ टू वर्क ऑन इट। और दिस इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत ही सिंपल थ्योरी है, बहुत ही सिंपल। यू हैव टू रियलाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या गलत कर रहे हो आप, और आपने उस चीज़ को बेटर बनाना है, आपने उस चीज़ को ठीक करना है। आप रात को देर से सोते हो, यू हैव टू गो अहेड एंड यू हैव टू यू रियलाइज दैट यू आर डूइंग इट रॉन्ग, यू आर वेकिंग अप लेट एट नाइट, और रात को देर तक आप जागते रहते हो, ये गलत है, आप इस चीज़ को रियलाइज़ करते हो। इट इज़ वेरी ईजी, यू हैव टू टेक अ स्टैंड। आपने एक स्टैंड लेना होगा, आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि ये मैं गलत कर रहा हूँ और मैंने अपनी इस हैबिट को ठीक करना है, मैंने अपनी इस आदत को ठीक करना है। एंड दैट इज़ टू स्लीप अर्ली। अर्ली सोना क्यों है? अर्ली सोना इसलिए बेहतर है, इंसान सुबह फजर के लिए आसानी से उठ सकता है, उसको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं फेस होती। फजर आपने पढ़ ली तो उसके बाद हमारे नौजवान मोस्टली स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, जो मोस्टली फजर के बाद ही उनकी क्लासेस होती है। सो ये बहुत ही ईजी हो गया, आप फ्रेश होते हो फजर पढ़ने के बाद तो आप ईजिली अपने क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो और आप फोकस्ड के साथ फोकस रहकर जो है आप अपनी क्लासेस को ले सकते हो। हमारे अक्सर नौजवान रात को देर से जब सोते हैं तो सुबह देर से उठते हैं, क्लासेस के लिए भी लेट हो जाते हैं। जब लेट क्लास पहुंचते हैं तो अक्सर या उनको बाहर खड़ा कर दिया जाता है, विच इज़ अ डिसग्रेस फॉर अ ह्यूमन एज वेल। या अगर क्लास के अंदर एंटर हो भी जाते हैं तो अक्सर नौजवान क्लास के अंदर ही सो जाते हैं। अब क्लास के अंदर सो जाना, फिर टीचर के लेक्चर का फ़ायदा क्या हुआ, क्लास लेने का फ़ायदा क्या हुआ? कोई बेनिफिट नहीं होता उसका एट द एंड ऑफ द डे। सो रियलाइज़ किया आपने, आपको पता चल गया मैं रात को देर तक जागता रहता हूँ, मैं सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, गलत इस्तेमाल करता हूँ मैं सोशल मीडिया का, जिससे मुझे भी नुकसान हो रहा है, मेरी मेंटल हेल्थ को नुकसान हो रहा है। सबसे मेन चीज़ मेंटल हेल्थ ही है। आप मेंटली स्टेबल नहीं होगे, आप मेंटली हेल्दी नहीं होगे, आप कोई भी काम नहीं कर सकते, किसी भी किस्म का काम उठाओ आप नहीं कर सकते। अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं हो, मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू डू समथिंग? चाहे आपकी स्टडीज़ हो, आपका काम हो, फिजिकल वर्क क्यों ना हो, उसका भी बहुत बड़ा रिलेशन है आपके मेंटल स्टेट के साथ। तो मेंटली हेल्दी नहीं हो गया आप, डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान मिलेगा आपको। उसके अलावा आप सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, बहुत बड़ा मसला है। टेक्नोलॉजी का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, गलत इस्तेमाल करते हो, बहुत बड़ा मसला है। आप क्लासरूम में पढ़ाई पर फोकस नहीं करते हो, ये बहुत बड़ा मसला है। स्टडीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं, अक्सर नौजवान कहते हैं हमारी स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, हम क्या करें? नाउ इज़ दिस अ क्वेश्चन टू आस्क इवन?
आप ये कैसा सवाल है, लोग पूछते कैसे ये सवाल कि हमारा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, हम क्या करें। पढ़ाई में इंटरेस्ट होता नहीं, बनाना पड़ता है। आपको किसी भी काम में आपका इंटरेस्ट होगा नहीं, आपको बनाना पड़ेगा, बिकॉज वो काम प्रोडक्टिव है, वो आपकी लाइफ को बेटर बनाता है, प्रोडक्टिव बनाता है। आपको उसमें अपना इंटरेस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो फर्स्ट थिंग वॉज टू रियलाइज, सेकेंड थिंग इज टू वर्क ऑन इट। आप काम नहीं करोगे उसके ऊपर, कभी नहीं तब्दील होगा। हमारे लोगों में बहुत बड़ा मसला ये है कि वो इंतज़ार करते हैं कि कोई आए, हमें गाइड करे, हमें समझाए, हमें मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, हमें जज्बा दे, तभी जाके हम कुछ करेंगे। दिस इज़ रॉन्ग। बजाय ये कि आप लोगों का इंतज़ार करो कि वो आए, आपको मोटिवेट करे, आपको जज्बा दे, आप अपनी मोटिवेशन खुद क्रिएट करो। आप खुद एक ऐसा जज्बा बिल्ड करो अपने अंदर, एक ऐसी मोटिवेशन बिल्ड करो अपने अंदर, एक ऐसी इंस्पिरेशन बिल्ड करो अपने अंदर जो आपको हर रोजाना इस बात पर मजबूर करे कि आप बेहतर बनो, ना ही कि ये कि आप बाकी लोगों की तरह बनो, आप बाकी लोगों की तरह लेजी बनो, आप बाकी लोगों की तरह अपना टाइम वेस्ट करो, बाकी लोगों की तरह अपनी लाइफ को जाया करो। ये मोटिवेशन इंसान के अंदर जब खुद बिल्ड होती है, वो इंसान आगे बढ़ता है अपनी लाइफ में, वो खुद को बेहतर बनाता है दूसरों से। दिस इज इट, दिस इज ऑल। बहुत ही सिंपल थ्योरी है। यू हैव टू रियलाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या गलत कर रहे हो आप, क्या सही कर रहे हो, उसका पता चल गया, यू हैव टू वर्क ऑन इट। मेहनत नहीं करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, सैक्रिफाइस नहीं करोगे, कुर्बानी नहीं दोगे, तो नेवर, दिस इज नेवर गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर यू टू चेंज। अगर आपने चेंज करना है, आपने मेहनत करनी होगी, ये शर्त है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि मेहनत शर्त है, और मैं हर इंसान के मेहनत का सिला देता हूँ। इवन काफिर के साथ अल्लाह ताला ने मेहनत के सिले का वादा किया। तो मेहनत काफिरों के लिए भी शर्त है, मुसलमानों के लिए भी, सबके लिए मेहनत शर्त है। मेहनत नहीं करेगा इंसान, उसको नहीं मिलेगा वो स्टेटस, वो सिंबल जिसके पीछे वो भाग रहा है। तो मेहनत शर्त है, इसमें हर एक चीज़ में मेहनत शर्त है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी एक शर्त है, और काम करना, मेहनत करना और सेक्रीफाइस, कुर्बानी, ये भी एक शर्त है। आपको कुर्बानी देनी होगी डिफरेंट चीज़ों के, तभी जाके जो है इंसान बेहतर बनता है और एक्चुअली अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। तो ये हर्डल्स होती है जो इंसान खुद को बनाता है। अब हर एक इंसान डिफरेंट हर्डल्स क्रिएट करता है अपने लिए, वो आप खुद समझदार हो, आपको खुद पता है कि आप क्या मसाइल खुद के लिए बना रहे हो, वो कौन कौन से मसाइल हैं जो आप खुद के लिए क्रिएट कर रहे हो, और वो किस तरीके से आपकी लाइफ को नुकसान दे रहा है, आपको नुकसान दे रहा है, आपकी फैमिली मेम्बर्स को, आपकी सोशल लाइफ को कैसे नुकसान दे रहा है, वो आप खुद बेहतर जानते हो। तो उन चीज़ों को समझें और इन चीज़ों के ऊपर काम करें। रियलाइज़ करें, काम करें, रियलाइज़ करें, काम करें, रियलाइज़ करें, काम करें। In this sense, you will become better. In this sense, you will start growing. You will start developing. आप अपना कैरेक्टर भी बिल्ड कर पाओगे, पर्सनालिटी भी बिल्ड हो जाएगी, और ये ऐसी बिल्ड हो जाएगी कि आपको पता चल गया गलत क्या है, और आपने गलत को रोका और ठीक करना शुरू किया, सही करना शुरू किया। दिस इज़ व्हाट बेटरमेंट इज़ एट द एंड ऑफ द डे। सो दिस वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू से। एट द एंड मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यू हैव टू रियलाइज एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट। ये दो फॉर्मूले जो हैं आप लेके जाएंगे अपनी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी बेहतर बनती जाएगी, प्रोडक्टिव होती जाएगी, आपको भी फ़ायदा मिलेगा और लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। तो रियलाइज़ करें एंड देन वर्क ऑन योर थिंग, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।